پروگرام پہ آیا اور ہماری خوشی میں شرکت کی. ناظرین آپ کا تو بات کیا لیکن پھر میں یہاں پہ اپنے بھائی اور اپنے دوست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. شارون جوید کو آپ جانتے ہوں گے. ایس ایم ٹی ایک سماجی تنظیم ہے جو کہ پچھلے 3 سال سے آن گراؤنڈ ہے اور کام کر رہی ہے، لیکن 2018 سے اس کو جامع پہنانے والے، اس کو گراؤنڈ پہ لانے والے اور اس کو فرنٹ پہ لانے والے میرے بھائی شارون، جن کے لیے آج ایک بہت بڑا دن ہے کہ وہ نیشنل پیس کاؤنسل نیشنل پیس کاؤنسل میں وائس چیئر میں منعقد ہوئے ہیں اور الحمدللہ کے پی کے لیول پہ منعقد ہوئے ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ جو ہماری نوجوان نسل کی جو سیاست ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہماری سیاست میں ایک ایسے فرد کا ہونا جو ایجوکیٹڈ ہو، جس کے پاس یہ ہو، جس کے اور شارون جیسے لڑکوں کو سیاست میں دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے. تو لہٰذا اسی خوشی میں ہم نے یہ پروگرام، اور میں آپ سے ہمارا سا لیٹ ہو گیا لیکن چلتے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. میں ہمارے جو یہاں پہ معزز مہمان آئے ہوئے ان میں ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں سید اظہر علی آپ اور اسٹوڈنٹ والی نوجوان سلطی بھائی، آپ سے اپنا اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جتنے میرے قیمتی بھائی ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، اور خاص کر میں شارون جاوید صاحب کو بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جاوید صاحب کو وائس چیئرمین بنے ہیں. ہمارے پیس کونسل کا مقصد ہے کہ ہم سب بھائی ہو کر ایک کڑی بنائیں، چین بنائیں، اور سب مل کر اس میں جتنی خدمت ہے عوام کی، ایک دوسرے یار دوست کی، ہم آپس میں مل جل کر ساتھ مل کر کام کریں اس میں. اور یہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہے جاوید افریدی صاحب، ان کی طرف سے، اور ہمارے جتنے دوست ہیں، یہ شاہ محمود صاحب، ان کی طرف سے انہوں نے بھی مبارکباد آپ کے لیے بھیجی ہے. تو لہٰذا جتنی ہم سے خدمت ہوگی آپ سب ہم مل کر اس کی خدمت کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ اظہر صاحب. یہ فرنٹ پہ جتنے بھی میرے مشران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. الحمدللہ ہر ایک بندے نے اپنی پوری کوشش کی ہے سماج کو بہتری پہنچانے میں. تو انہی مشران میں آگے ہمارے وجے کمار صاحب کو بلانا چاہوں گا، جو کہ سینٹرل فائنانس سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. پلیز آپ اسٹیج پہ تشریف لیں. اوم شری گردیوائے نمہ، اوم شری گردیوائے نمہ. بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ اس حوصلہ افزائی کے لیے ارینج کیا. مجھے جب یہ پتہ چلا کہ شارون کی جیسی اناؤنسمنٹ میں نے دیکھی، نوٹیفکیشن دیکھا اس کا، دل سے ہی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ شارون کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جتنا اس کا جو پازیٹیو مائنڈ ہے، جتنا یہ یوز کر رہا ہے اس وقت، اس کو ہم سب کی ضرورت ہے. ہم سب کو، اسپیشلی یوتھ جو ہماری بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اب سب ہے کہ اس کے ساتھ ایز اے ٹیم کام کریں، تاکہ اور زیادہ مزید آپ لوگوں کے لیے یہ کام کر سکے، آپ لوگوں کی خدمت کر سکے. شارون، یہ جگہ آپ کے لیے جو ہے نا، صرف یہیں پر آپ نے اسٹاف نہیں ہونا، آپ نے آگے بہت سفر کرنا ہے. بی پازیٹیو، انرجیٹک ہو. بہت امیدیں ہیں آپ کو، پوری قوم کو، ہمیں اسپیشلی مجھے بہت امیدیں ہیں آپ سے. بھگوان آپ کا ساتھ دے، آپ کو اور زیادہ آگے لے کے جائے. آپ کو جہاں پر بھی ضرورت پڑے گی، پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت پڑے گی، میری ضرورت پڑے گی، آپ اپنے پاس پاؤ. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی اور اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یوتھ کا ولیج پر یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف مینارٹی ونگ جو پاکستان میں جو ہماری ٹیم ہے، ہم لوگ ایک ٹریننگ سیشن آرگنائز کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگ جتنی بھی ہماری یوتھ ہے کے پی کے لیول پہ، ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ٹریننگ ان کی ہو جائے، انہیں کانسٹیٹیوشن آف جو پاکستان ہے اس کے حوالے سے، ہسٹری آف پاکستان کے حوالے سے،
मिनॉरिटी राइट के हवाले से। वो हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बुध तक हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे उसको। तो शारून हो गया, जितने भी हमारे यंगस्टर बैठे हुए हैं, ये सारे हमारी सीनियर लीडरशिप है, अगर ये भी ज्वाइन करना चाहे वहाँ पे ट्रेनिंग में ज़रूर आएँ, क्योंकि जब तक हमें पता होगा कि हमारा राइट क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जाके जैसे उन्होंने पोर्शन दिया हुआ है हमारे राइट्स के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो क्या है, तो हम अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, बेहतर हो जाएगा। तो आप सबको वेलकम है। शॉर्टली हम लोग इसके सारी नॉमिनेशन करेंगे, नाम बनाएंगे, लिस्टिंग करेंगे। तो आप सबको है कि आप आएँ, ट्रेनिंग में बैठें, सीख लेंगे ना, नॉलेज है, इल्म है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें हमारे राइट्स क्या हैं। तो ज़रूर आपको हम जो है ना लिस्टिंग करेंगे यूथ की, सीनियर्स की, तो ज़रूर आएँ आप। हम कोशिश करेंगे कि पेशावर को, जब ऐसे अगर लाहौर में भी हुआ ये सेशन, अगर लाहौर में भी हुआ तो वो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस है, फूड अलाउंस सब आपको पेड है, वो आपको मिलेगी उसकी। तो कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि, और उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर उस पर पार्टिसिपेट करें, जो हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया शाहरुख, आप पोस्ट रखेंगे, आप ज़रूरत पड़ेगी मेडिकल काम करें, मोबाइल काम करें। जैसे जितनी भी नेगेटिविटी इस वक्त चल रही है बाहर कंट्री में जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, आप यकीन जानेंगे उनके अपने मुल्क में मिनॉरिटी का बहुत बुरा हाल है, बट ये कि हमारे मुल्क में हमारे अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन हमने पॉजिटिव लोगों को देने हैं। इसीलिए हम लोग इस सेशन में हम लोग मांगते होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ है या नहीं, तो उसमें नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपको अपने राइट का पता लगी हुई है मेरा व्हाट्सएप नंबर। सर बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। शारून भी आपको थैंक यू। थैंक यू विजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। मेरी गुजारिश है साबिर भट्टी साहब से, समाजी कारकुन से, वो भी आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया आदिल साहब। मैं शुरू करता हूँ खुदावंद यसू मसीह नासरी के जलाली व बरकत नाम के वसीले से जो नहायत मेहरबान और रहीम रहम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शारून के लिए ये जो ज़मीन है, ये जो जगह है, यहाँ पे इस वाला साहब ने कोहाट शहर में मॉडरेटर साहब ने अपनी खिदमत बहुत ज़्यादा की है। इंसानियत के लिए वो हर जगह पे खड़े हुए हैं। मॉडरेटर साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि सब दोस्त मेरे साथ मिलके मॉडरेटर साहब के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि शारून साहब इनके साहबजादे हैं। समाजी सतह पे मैं बात करूंगा, इसमें बहुत से लोग आते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके रास्तों में खराबियां पैदा करेंगे, पर आपने उस चीज को नहीं देखना। आपने अपनी मंजर की तरफ देखना है, उन लोगों को देखना है जो लोग आपके इंतजार में मुंतजर हैं। आपने उन लोगों को देखना है जो आपके मुंतजर हैं। आपने उनको नहीं देखना कि जो लोग आपको खराब कर रहे हैं या आपके साथ चल रहे हैं आपको खराब करने के लिए। आपने उन लोगों को देखना है जो आपके लिए रास्ते में मुंतजर हैं, जो इस इंतजार में है कि कोई हमारे लिए मसीहा आएगा। तो सबसे पहले तो शारून साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये बड़ी बात है। आपने अभी कदम जो हैं अपने मजबूत रखने हैं, क्योंकि अभी आपको जवाबदारी सौंप दी गई है। तो समाजी सतह पे मैं ये बात करूंगा, 93 से मैं खिदमत कर रहा हूँ। खिदमत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब लोगों को एक इंसान राजी नहीं कर सकता, एक शख्स राजी नहीं कर सकता। कुछ लोग राजी हो जाते हैं, कुछ लोग खफा हो जाते हैं। जो खफा हो जाते हैं तो फिर उनको
करने, उनको भी नहीं छोड़ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया मॉडरेटर साहब। शरून साहब आपको फिर मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पेंडाबाद। थैंक यू सागर भट्टी साहब, सामाजिक कारकुन। हमारे दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जावेद हाजी, साबिक डिस्ट्रिक्ट कौंसल मिनार्टी, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, शुरू करता हूँ खुदा के नाम से जो नहायत मेहरबान और करीम है और रहम करने वाला है। आज हम सब का यहाँ पे इकट्ठा होना इस बात की दलील है कि वाकई हम शाहरून के लिए उसकी खुशियों को दोबारा करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा इकट्ठा होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि हम सब ने मिलजुल के अपने मुल्क को कौम की खिदमत करना है। नेशनल पीस का मतलब ये है पीस। ये जो दो महज़ब शख्सियत आपके सामने बैठे हुए हैं, तो ये हमारे नेशनल पीस का एक ख़ास हिस्सा है। इनका तारफ़ तो पहले हो चुका है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज का दौर ये नौजवानों का दौर है। हमारी इंजील मुक़द्दस में लिखा है कि जो पत्थर मुमारों ने रद्द किया वही एक सा हो गया। आज हमारी कौम से जितने भी नौजवान बच्चे अपने आप को करें खिदमत के लिए, ये हमारे लिए वाजिब है। मेरा यकीन है कि यही नौजवान नस्ल कल अपने मुल्क और कौम के लिए फाइट करेगी, तगदो करेगी, क्योंकि हर आदमी का एक टाइम है और हर आदमी अपने टाइम से खिदमत में लगा रहता है। गो के नेशनल पीस का भी यही मकसद है, और हमने हमारे मुल्क में अंदरूनी सतह पे जो इंतशार फैला हुआ है, नेशनल पीस का ये मकसद है। आप देखते हैं ये एक सियासी सतह पे बात हो जाएगी, मगर ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इस बात को मंजर आम पे लेके आऊं, मगर आप देखते हैं कि ये बैरूनी ताकतें जितनी भी हैं, इन्होंने हमारे मुल्क के पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इंटरनली सतह पे ऐसे एजेंट छोड़ रखे हैं कि वो नहीं चाहते कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, अहले तशिया, सिख ये आपस में एक दिल होके, यकजा होके पाकिस्तान में काम करें। नेशनल पीस का मकसद ये है कि मुल्क के पाकिस्तान में नौजवान नस्ल सामने आए और अपनी एक ऐसा मुस्बत किरदार अदा करे ताकि मुल्क को अमन, सुलह, सलामती और प्यार मोहब्बत की वो शम्में जलाएं जिसके लिए आपको मालूम है, सबको मालूम है कि ये दिन हर जगह पे हमारे अंदर
सियासी सतह पे हम लोग आपसे एक जगह नहीं होके बैठते। आज हमारे मुल्क में मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं ताकि सब मिलजुल के आपस में बैठें और भाईचारे का दर्स दें एक दूसरे के, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा मकसद एक मुल्क में रहते हुए एक भाई एक बहन की तरह हमने आपस में रहना है। लिहाजा मेरी शाहरून को, मैंने तो आपको अपना तारफ नहीं कराया, मगर बीइंग नेशनल पीस का चेयरमैन होते हुए मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे अंदर ही अंदर मतलब एक नई शाख ने अप्रूवमेंट की, और मेरा ईमान है कि यही शाख हमारे लिए 30 से 60 और 60 से 100 गुना फल लाएगी, क्योंकि ये नौजवान नस्ल जितनी भी बैठी हुई है ये हमारे मुस्तकबिल की उभरती हुई है, हमारी कवशों का एक वो रिजल्ट है, वो नतीजा है जो कि आज आप लोग देख रहे हैं कि जगह जगह हमारे अगर वो क्रिश्चियंस में है, हिंदू में है, मुस्लिम में है, सिख में है, जहां पे भी आप देख रहे हैं नौजवान नस्ल अपना एक बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रही है। और मैं अपनी तरफ से बीइंग नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन होते हुए मैं शाहरून को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उसे मैं वेलकम करता हूं। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि हम सब मिलके इसी तरह, क्योंकि मेरे साथ हिंदू बरादरी भी काम कर रही है, सिख बरादरी भी काम कर रही है, और हमारी क्रिश्चियनिटी में यूथ की कमी थी तो वो आज शाहरून ने पूरी कर दी। तो अब एक्चुअल तो चाहिए यह था कि हमारी नेशनल पीस के जो सरबराह हैं, जो हमारे, क्योंकि मुझे भी इन्हीं नेशनल पीस वालों ने इंट्रोड्यूस कराया, तो चाहिए यह था कि जावेद अफरीदी यहाँ पे होता, सरबराह आला यहाँ पे होता, शाह महमूद साहब यहाँ पे होते, और इसी तरह हमारे नेशनल पीस काउंसिल के जो दीगर कारकुनान हैं उनका भी यहाँ पे होना हमारे लिए बाइसे मसरत होता। मगर अफसोस के साथ कहता हूँ कि आज हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी नेशनल पीस काउंसिल के 2 कारकुन हैं। ये नहीं उनका भी यहाँ पे होना, क्योंकि मेरी आज सरबराह से बातचीत हुई है और उन्होंने सबके साथ मोबाइल पे बात की है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारी शनाख्त है, ये नेशनल पीस के जितने भी ओहदेदारान हैं वो मुझसे सीनियर है, उनका होना यहाँ पे हमारे ऊपर बाइस शफकत का हाथ है। थैंक यू वेरी मच जी। मैं आखिर में यही कहूँगा कि शाहरून, आपको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चलते चलते एक नारा लगा देते हैं, और ये हमारा हक है, क्योंकि ये धरती, ये माँ, ये पाकिस्तान हमारा घर है और हमने अपने घर की हिफाजत करनी है। हमारी जान भी चली जाए, ये हमारी शान, ये हमारी आन है। पाकिस्तान, जरा जोर से आवाज लगाइए भाई, क्या रोजा रखा हुआ है क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे मशरान ने जितनी भी यहाँ पे बातें की, वो बातें सीखी नहीं जाती, वो बातें कमाई जाती है। उन्होंने एक अरसा गुजारा है अवाम की खिदमत करने में, और उस अरसे का ये नतीजा है कि वो जो भी बात करते हैं वो एक पत्थर की एक ईंट का वजन रखती है। जैसा कि काफ़ी मेरे बुजुर्गों ने भी कहा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी न किसी की कहानी में एक बुरे किरदार बन के रह जाते हो।
لیکن آپ نے اس ایک کہانی کو نہیں دیکھنا, آپ نے وہ پیچھے 100 کہانیوں کو دیکھنا ہے جو آپ کی منتظر ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے, وہ آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں, آپ وہاں پہ جاتے ہو, آپ ان کے لیے کام کرتے ہو, ان کی خدمت کرتے ہو, سو دیٹ وہ آرام سے سو سکیں, وہ آرام سے کھا سکیں. ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ نے اور خدا نے ہمیں یہ ایک جذبہ دیا ہے کہ ہم وہ ہاتھ بن رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم کوئی گرو کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک عزت کی بات ہے. تو شارون یہاں پہ ہماری جتنی بھی یہاں پہ پیچھے یوتھ بیٹھی ہے, میں اپنے مشران سے گستاخی معاف, لیکن میں کچھ 2 منٹ اپنی یوتھ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو شارون بھائی ہیں ہمارے, یہ ہماری یوتھ کے لیے ایک مثال ہے. 20 سال کی عمر میں یہ ایک نیشنل سٹیٹ تک پہنچ چکے ہیں. ان کو الحمدللہ کوہاٹ تو چھوڑیں, کے پی چھوڑیں, پاکستان میں کافی یوتھ جانتی ہے. ہماری اکثر بات ہوتی رہتی ہے, اور ہم انشاءاللہ SMT کو بھی اوور آل دا پاکستان پھیلانے والے ہیں سون انف. لیکن اسی بیچ ایک اور سٹیپ لیا انہوں نے اپنی کامیابی کی طرف, اور اس وقت وہ پیس کاؤنسل کے چیئرمین منعقد ہوئے KP لیول پر. تو اس بات کے لیے میں بھی اور میرے جتنے عدیل بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. 7 سال 13 سے لے کے 20 سال کی جو عمر ہوتی ہے, یہ ایک لڑکے کے لیے, ایک نوجوان کے لیے ایک بہت ہی محتکون عمر ہوتی ہے. ایک جوان کیا کہہ لیں, ایک انسان ہی کہہ لیں, کیونکہ جب انسان جتنے بھی آگے بڑھتا ہے تو اس کو یہی یاد آتا ہے کہ میرا بچپن اور میرا بچپن. اور یہ جو 13 سے لے کے 30 سال کی جو عمر ہے وہ اس میرے دوست نے خدمت میں گزار دی 7 سال تک, اور ابھی بھی وہ آگے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ جب یہ پاکستان کی سیاست میں قدم رکھے گا تو یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہی بن کے نکلے گا, کوئی بجھتی ہوئی موم بتی نہیں بنے گا. تو میں شارون کو اس وقت سٹیج پہ بلانا چاہوں گا, کیونکہ اتنی اعلیٰ درجے پہ اس وقت بیٹھی ہوئے ہیں, اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیال کا اظہار کریں, اور اپنی فیوچر گولز کے مطابق ہمیں گائیڈ کریں کہ وہ انشاءاللہ آگے کیا کرنے والے ہیں, اور ان کے آگے کے فیوچر کے خیالات کیا ہیں. شارون. بہت شکریہ صاحب. شروع کرتا ہوں رب العظیم کے ببرکت اور بزرگ نام سے, جو ہم سب کو بخشتا ہے, ہم سب کا پالن ہار ہے, ہم سب کو نوازتا ہے. سب سے پہلے آئے ہوئے تمام مشران کو, خاص طور پہ جو ہمارے بڑے ہیں, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, اب ایک ایک کا نام تو میں نہیں لوں گا, آپ سب کا میں دل کی اعضاء گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا اور آپ سب موجود ہیں. بڑا میں آپ سب کا مختصر سا وقت لوں گا, اور اس میں جو اپنے گولز ہیں جن کو اچیو کرنا چاہوں گا, جن میں آپ کی مدد چاہیے ہوگی, اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا میں شیئر کروں گا. شروع کرتے ہیں 2013 سے, جب سے سیاست کا جو کیریئر تھا آغاز ہوا, ٹھیک ہے, تو تب سے PTI پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم منسلک ہیں. جتنے ہمارے ساتھ نوجوان بھائی ہیں, بزرگ ہیں, اور ہم سب کام کر رہے ہیں, اور اتنا کام کر رہے ہیں کہ وہ آپس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, تو اسی لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ابھی بات کرتے ہیں SMT کے حوالے سے, جو کہ ایک سماجی تنظیم ہے, سوشل موومنٹ ٹیم. اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ 2017 میں اس کا میں نے آغاز کیا. میرے ساتھ بہت سارے لڑکے جڑے, میرے ساتھ بہت سارے بزرگ جڑے, خواتین جڑی, بہنیں جڑی, ہم نے مل کے بہت سارے کام کیے. جو کام اگر میں آپ کو گنانا شروع کروں تو وہ میں گنا نہیں پاؤں گا, کیونکہ بہت زیادہ کام کیے. مجھے فخر ہے اپنے لڑکوں پر, SMT کے لڑکوں پہ, SMT میں جتنے ہمارے ساتھ مشران ہیں ان سب پر مجھے اس بات کا فخر ہے کہ جب ہماری ٹیم ان کے پاس گئی کبھی ہمیں مایوس ہو کر واپس نہیں آنا پڑا. میں شکریہ ادا کروں گا رب العظیم کی ببرکت ذات کا, جس نے کبھی ہمیں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جتنی تعریف و تعظیم کی جائے رب کی, وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کم ہے. اور رہی بات گولز کی, گولز سب سے پہلے میرا موقع ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو اپنی محنت ہوتی ہے اور ہوتی ہے, اگر وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں محنت, تو ہمارا جو بھی گول ہو ہم اس سے زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو ایک چیز میں محدود نہیں کرنا چاہیے کہ میرا گول ہے کہ میں نے آج یہ اچیو کرنا ہے, میں اس سے زیادہ محنت کر کے اس سے بہتر بھی اچیو کر سکتا ہوں. بذاتی طور پر خود اس چیز کا نظریہ رکھتا ہوں کہ آج اگر آپ کے پاس
नहीं है कुछ भी, तो हो सकता है कल आपके पास इतना हो कि आप खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। तो कभी भी इस बात पे मायूस नहीं होना कि आज आपके पास कुछ नहीं है। आज आपको मैं एक हकीकत से रुशनास करवाता हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अब अजीम नाम है उनका, अजीम प्रेम जी उनको कहते हैं। उन्होंने जब अपने बिजनेस का आगाज किया था, ये उस वक्त की दौर है जब घी जो था कनस्तर में बिका करता था, तो काफी अरसा पहले की ये बात है। तो एक दिन गांव में वो घी बेचते थे, तो उनके पास एक बूढ़ी औरत आई। उन्होंने कहा, अजीम जी आप ये जो घी बेचते हैं इसको आप किस तरह प्योरीफाई और पाक रखते हैं, क्योंकि जब कनस्तर में खुला घी बिकेगा ऊपर मक्खियां भिनभिनाती हैं, ऊपर गंदगी, और मतलब आप खुलेआम जब घी बेचोगे तो आप इसकी सफाई और लोगों को मतलब किस तरह मतलब ऐसा अंदाज में पहुंचा सकोगे। तो करते 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 उन्होंने मेहनत और लगन अपनी डेडिकेशन के साथ जारी रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं डिमोटिवेट हो गया हूं, जिस तरह जावेद नजीर साहब ने और साबिर साहब ने कहा कि बुरे लोग बहुत आपको मिलते हैं इस काम में, आपने उनसे घबराना नहीं है। हमारे पास तारीख से अगर पन्ने उठा के देखें तो इतनी मिसालें हैं मोटिवेशन की कि अगर आप उनकी तरफ फोकस रहो तो आप डिमोटिवेट कभी नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात अजीम प्रेम जी की जो मैंने आज एग्जांपल दी है, आज अगर जाके आप रात को गूगल पे सर्च करें इस नाम को, अजीम प्रेम जी के नाम को, सबसे मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है आईटी की, जो ये कंप्यूटर्स और ये सॉफ्टवेयर की चीजें, वॉशिंग मशीन, विप्रो नाम की कंपनी है उनकी। इंटरनेशनली मल्टीनेशनली इट इज द नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आईटी, विप्रो। वो बंदा कुछ अर्सा पहले कनस्तर में घी बेचा करता था। अगर वो बंदा इतनी तरक्की कर सकता है कुछ अरसे में, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तरक्की के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बाएमी अखुवत, भाईचारा। सब लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, लेकिन कभी इस बात पे गौर किया है कि हम सब एक होते हुए भी एक हैं कि नहीं। दो लोग का मजमा होता है, दो लोगों से ज्यादा का मजमा होता है। खुदा की जात को हाजिर नाजिर जानकर बताएं मुखलिसी से आप कितना काम करते हैं और अपने जाती मफाद के लिए कितना काम करते हैं। समाजी तंजीम एसएमटी जिसका आगाज किया, मैं फिर से एक दफा दोहराऊंगा, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अपने वालिदैन का, रब की जात के बाद वालिदैन का शुक्रिया अदा करूंगा। कभी भी इन्होंने मुझे किसी काम से रोका टोका नहीं, और आज ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं अपने नौजवानों पे फख्र इस बात का करता हूं कि जहां मेरा बस नहीं जाता, मेरे नौजवान मुझसे पहले पहुंचे होते हैं काम के लिए। मैं चाहूंगा कि आप सब नौजवानों की अप्रिसिएशन के लिए एक दफा ताली जरूर हो जाए। रही बात हमारे मशरान की, सबसे पहले मशरान में मैं अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, अपनी वालदा मोहतरम का शुक्रिया अदा करूंगा, जो मैं खुदा की तरफ से एक अपने लिए ब्लेसिंग समझता हूं कि मेरे लिए मेरे नसीब में जिन्होंने कभी मुझे किसी बात पे ना रोका ना टोका, हमेशा मोटिवेट किया, वो हम गलत हूं या सही, चाहे मैं स्याह करूं या सफेद। हाँ मैं ये कहता हूं समझाते जरूर हैं, लेकिन कभी मुझे किसी काम से नहीं रोका, और मैं जितना इस बात का शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। अब आते हैं नेशनल पीस काउंसिल की तरफ। सबसे पहले तो मैं जावेद अफरीदी साहब का बेहद मशहूर हूं, जिन्होंने इस तरफ मुझे लेके आए कि मतलब आप भी इसकी तरफ आए, नेशनल पीस काउंसिल की तरफ। वो काफी आए थे, हमारी बैठक में आए, उनके साथ काफी गुफ्तगू हुई। मैं पहले तो काफी उसके साथ ये बात कर रहा हूँ कि मतलब अभी वो मौजूद नहीं है, उनको होना चाहिए था, जिस तरह जावेद नजीर साहब ने कहा, जो भी उनकी वजूहात नहीं आ सके, लेकिन होना चाहिए था उनको। उन्होंने इस सोच की तरफ मुझे मुतारिफ कराया, आया ऑफिस में, काफी अप्रिसिएशन की उन्होंने कि एसएमटी बहुत अच्छा काम कर रही है। वो भी कहते हैं मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहूंगा। मैंने आप हमारे शख्सियत जरूर कि लेवल पे जब हम करेंगे कि मतलब ज्वाइनिंग में हम दावत देंगे कि आप भी शमूलियत करें, तो यकीन करें जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने जवाब दिया कि आप मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं, आपके लिए दिन और रात मेरे लिए जैसा, आप दिन को कहेंगे मैं आऊंगा, आप रात को कहेंगे मैं आऊंगा। मैं बेहद मशहूर हूँ कोहाड़ शहर के मशरान का। कोहाड़ शहर के साथ साथ मैं केपीके के जितने मशहूर के जो हमारी एसएमटी है ये कोहाड़ तक महदूद नहीं है, और एक्साइज से हमारे साथ कम से कम 30 से 35 मेंबर्स एड अप हो चुके हैं। जर्ड से हमारे पास 32 मेंबर्स एड अप हो चुके हैं। जेडा पटियाला से हमारे साथ 28 मेंबर मुंसलिक हो चुके हैं एसएमटी तंजीम से। कोहाड़ के जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं दे आर मोर देन 100। तो इस बात पे मैं एक दफा शुक्रिया अदा करूंगा। विद 6 मंथ्स सिर्फ
कर ली है कि की मिसाल दी जाती है। इससे बड़ी बात हो सकती है कि एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आपकी तंजीम की कोई मिसाल दे। एसएमटी की मिसाल एयर यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने अपनी प्रेजेंटेशन में दी है कि इसका सदर जो है ये एक क्रिश्चियन लड़का है। रमजान में जितनी उन्होंने हमारी तारीफ की तंजीम की, मैं आपको सुनाऊं तो यकीन करें कि आपके खुशी के आंसू निकलेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद की लीडरशिप, उधर उनके पॉलिटिशियंस भी मौजूद थे। एयर यूनिवर्सिटी एक नामवर यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसका नाम है। उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। उधर की प्रेजेंटेशन में उनका जो ऑडिटोरियम है उसमें प्रेजेंटेशन में आपकी तंजीम की तारीफ की गई है। एमएनए शरियार अफरीदी साहब पर्सनली उन्होंने तारीफ की है कि मैं आपके यहाँ तशरीफ भी लेकर आऊंगा और जरूर उन्होंने कहा है कि जहां भी आपको मेरी जरूरत हुई मैं आपके साथ तावन करूंगा। मैं उनका बेहद मशहूर हूं क्योंकि जब भी हम उनके पास गए हैं उन्होंने कभी हमें मायूसी के साथ लौटने नहीं दिया। एहसन अफरीदी साहब जो उनके भाई हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और सबसे मिनिस्टर हैं ज़ियाउल्लाह बांगा साहब आईटी के, पर्सनली बड़े भाइयों की तरह हैं वो मुझे छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। यकीन करें कि उनके साथ बैठक में बहुत लंबी चौड़ी हमारी बहस हो जाती है। ये साउथ भाई जो आज हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं के कुछ निजी और अंदरूनी मसाइल पर उनके साथ कितनी लंबी हमारी तकरीबन 1.5 घंटा बहस हुई थी। कभी उन्होंने हमें नो नहीं किया। इस बात पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे हम उनके पास कोई बच्चों जैसी जिद भी उनके सामने रखें तो यकीन करें वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें। सबसे पहले मैं एक दफा फिर से रब्बुल अज़ीम की बबरकत ज़ात का शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का, और सबसे बड़ी बात कि टीम एसएमटी के जितने नौजवान हैं, यकीन करें आप लोगों के लिए तो मेरी जान भी हर वक्त हाजिर है। आप लोगों ने मेरा जब तक मैं उदास हूं तो यकीन करें आप लोगों की बहादुरी, आप लोगों का साथ मुझे हमेशा खुश करता है। आखिर में एक ही नारा हम लगाएंगे, पाकिस्तान। थोड़ा ऊंचा, क्योंकि इस कौम के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, अब नारा लगा के थोड़ी सी गले की भी कुर्बानी दे दें। अभी भी मजा नहीं आया। इकबाल साहब का एक शेर है, कहते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। जिस कौम में कोई चेंजिंग आई है, जिस कौम ने तरक्की की है, हमेशा तारीख गवाह है। तारीख का कोई भी पन्ना आप उठा के देख लें, जिधर यूथ ने काम किया है रिवाइवल भी उधर आया है, चेंजिंग भी उधर आई है। काम का आगाज भी यूथ ही करती है, काम का इख्तिताम तक भी यूथ लेके जाती है। जिधर यूथ नहीं होती वो कौम कभी कामयाब नहीं होती। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि जितने मशरान हैं पहले तो आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें, क्योंकि तमाशा और कठपुतली नाच और वो क्या कहते हैं मदारी और बंदर वाले तमाशे दिखाने से अच्छा है कि एक साथ आप लोग प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे के साथ अखुवत के साथ आप लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का मुजाहरा करें, ताकि एक यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन जो हमारे कायद का फरमान था उसकी एक बेहतरीन मिसाल कायम हो सके। सबसे बड़ी और अहम बात, हमारे जो अक़लियत के रहनुमा हैं रवि कुमार साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि वो हमारे हर प्रोग्राम में शमूलियत करते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, बढ़ चढ़कर वो हमारे साथ तावन करते हैं। और उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि मतलब तंजीम के जितने अमूर होंगे वो बढ़ चढ़कर हमारा उस पर साथ देंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, रवि कुमार साहब अभी मौजूद तो नहीं है लेकिन उनकी अप्रिसिएशन के लिए एक दफा ताली और भरपूर जोर से ताली बजाएं, क्योंकि हमारे मिनिस्टर ज़ियाउल्लाह बांगा साहब की तरह वो भी एक दबंग एमपी हैं। कहीं भी मतलब वो ये नहीं कहते कि ये मेरे लेवल से नीचे की चीज है, यहाँ मैं शामिल नहीं हूँगा, ये मेरे लेवल की चीज नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं आके बैठूंगा। तो जरूर अपने दिल में जितने मशान हैं उन सब की इज्जत किया करें, क्योंकि हमारे मशान जो होते हैं ये रब की मर्जी से आते हैं। कहते हैं जिस तरह की कौम होती है उसी तरह के मशान ऊपर मुसल्लत होते हैं। अगर आपके मशान ठीक नहीं है तो यकीन करें कि कौम ठीक नहीं है, और अगर आपकी कौम ठीक नहीं है तो आप एक मशान किस तरह मारते हैं। छोटा सा किस्सा, जा रहे थे चालू के साथ एक कुत्ता भी जा रहा, तो सारे घर ही लोग आ रहे हैं, एक दौर खुश था, कोई घर से लगा दौर खुश नहीं होगा। उससे बोला कि बाबा जी बाबा जी थोड़ी स्पेसशिप पे जो तुसी उदास हो। बाबा जी ने कहा नहीं मेरी स्पेसशिप पे नहीं। फिर बाबा जी को कहा कि आपका फ्यूल लग रहा है इसमें। बाबा जी ने कहा नहीं मेरा फ्यूल नहीं लग रहा। बाबा जी से जब खैर दरियाफ्त की तो बाबा जी से पूछा गया कि आप क्यों उदास हैं स्पेसशिप पे जब 4 लोग और एक कुत्ता जा रहा है। बाबा जी ने कहा इस बात की मुझे हैरत है कि अगर ये कुत्ता पहले उतर गया स्पेसशिप से, ये कुत्ता पहले उतर गया स्पेसशिप से, तो चांद पे रहने वाली मखलूक ये ना समझे
کہ دھرتی پہ رہنے والے لوگ اس طرح کے ہیں. یقین کریں یہ بات صرف میں اس لیے کیا تھا کہ جو رہنما آپ اپنے لیے چنتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے چنیں. یہ نہ سمجھے دھرتی کے لوگ کہ ہمارے لیے کتا چنا گیا ہے. جس کو بھی لیڈر اپنا چنتے ہیں سوچ سمجھ کے چنیں. مشان جو آپ چنتے ہیں پھر بعد میں آپ کو ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو یقین کریں کہ جس طرح کی عوام ہوگی اسی طرح کا آپ کا مشر ہوگا. اگر عوام اچھی تو مشر اچھا، مشر اچھا تو عوام اچھی. بات کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ایک پتھر تب تک پتھر رہتا ہے جب تک اس کو کوئی تراشنے والا نہ ملے. وہ پتھر پھولدان کی شکل تبھی لیتا ہے جب اس پہ طاقت لگائی جائے، اس پہ محنت کی جائے، اس کو تراشا جائے اور پھر وہ ایک پھولدان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. میں یہاں پہ شکر گزار ہوں اپنے جوید انکل کا کہ انہوں نے شارون کو معاشرے پہ ایک بوجھ نہیں بنایا بلکہ ایک پلر بنایا، ایک سہارا بنایا جو کہ معاشرے کو آگے چلا سکے، نہ کہ معاشرے کی ایک اور ٹانگ کاٹ سکے. تو اس بارے میں میں جوید انکل کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیال کریں. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے، ہم سب کو ایسے موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے حضوری میں آ سکیں. میں اس وقت خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں سید اظہر علی شاہ صاحب کا جو وائس چیئرمین ہیں نیشنل پیس کونسل کوہاٹ کے، اور اس وقت جاوید افریدی صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں. کل جب ان کو میں نے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے دعوت دی تو بتایا کہ وہ مذہبی سلسلے میں یعنی کہ سیروزے کے لیے جا رہے ہیں. تو میری طرف سے نمائندگی جو ہیں وہ سید اظہر علی شاہ صاحب کریں گے. میں تھینک یو ان کے ساتھ آئے ہوئے شاہد بھائی کا بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بہت ہی محترم بھائی وجے کمار کا جو سینٹرل فائنانس سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا کہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہوئے. میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی صابر پٹی کا جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنی بہت سی سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ اس خدمت میں بھی شریک ہوئے. میں اپنے بہت ہی محترم اور پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ اسپانسر اور نیشنل پیس کونسل کے کوہاٹ کے چیئرمین منارٹی چیئرمین جاوید نچیز بھائی کا جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے اپنی بہت سی خوبصورت باتوں سے آپ سب کو مستفید کیا اور اپنے آپ سب کے خون کو بھی انہوں نے گرمایا. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب کا جو یہاں پہ موجود ہوئے. ایک بات میں کرنا چاہوں گا، بہت سی باتیں ہوئی ہیں، ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ نیشنل پیس کی جو سپیلنگ ہیں PEACE، کچھ لوگوں نے اسے PIECE سمجھا ہے. وہ پیس فرق ہے. قومی کوئی بھی قوم ہے، وہ پاکستانی ہے یا اقلیت قوم میں ہے، اس کو ٹکڑے کرنے پر لوگ تیار ہیں. پیس یہ جو ہے نیشنل پیس یہ امن کی بات کرتی ہے اور قومی طور پر امن کی بات کرتی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس پیس کا مطلب ٹکڑے کرنا سمجھ لیے. جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کن سے میں مخاطب ہوں. امن ہے اور ہم سب کو امن کے پانی کا پیروکار ہونے کا ہم سب جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ امن کا اور محبت کا پیروکار تھا، ہم اس کے پیروکار ہیں. وہ امن کا بانی تھا، امن کا بنانے والا تھا. اور میں نیشنل پیس کونسل کے تمام مشران سے تقاضا بھی کروں گا اور تھینک یو ادا کروں گا کہ انہوں نے منارٹی کی جو یوتھ ہے اس کے لیے ہمارے شہر میں سے ایک نوجوان کو منتخب کیا اور اس کے ذمے پورے صوبے کی جو منارٹی کی یوتھ ہے اس کو اکٹھا کرنا.
नेशनल पीस काउंसिल के साथ जोड़ना और इस छोटे से शहर में से एक नौजवान को जब उन्होंने सेलेक्ट किया है तो मैं थैंक यू अदा करूंगा नेशनल पीस काउंसिल का कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े शहर में बड़े अच्छे नौजवान हैं अक़लियत के, मगर उनमें से ज़्यादा बेहतर उन्होंने सिलेक्शन की कि सऊद ने कहा 20 साल, तो अभी 20 साल उसकी एज नहीं पूरी हुई, अभी उसकी एज 19 साल भी पूरी नहीं हुई, 18 साल और कुछ महीने हैं उसकी एज। सदर साहब इतनी है ना, किधर शादी? 25 सितंबर 2001 है उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 18 साल और कुछ महीने आप लगा लें। नेक्स्ट ईयर उसकी 19वीं बर्थडे है, तो खुदावंद ने उसको सरफराजी दी है। इतनी सी उम्र में उसने पूरी सूबे की जो है कोहाट का बाशिंदा होने के नाते, क्योंकि उसने पैदाइश उसकी कोहाट की, उसकी बेसिक एजुकेशन फ़िज़ाइया इंटर कॉलेज से, फिर उसके बाद कस्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, और इस उम्र में पहुंचते पहुंचते उसने कोहाट के लिए बड़ा नाम कमाया है। खुदावंद उसे बरकत दे, खुदावंद उसे लंबी उम्र दे, खुदावंद उसे इसी जोश और बलबले के साथ अपने बड़ों के साए के नीचे रहते हुए फलने बढ़ने का मौका दे। और मैं नेशनल पीस से भी दरख्वास्त करूंगा कि ये शुरू से हमारा मामला रहा है कि जैसे जावेद भाई ने कहा, मेरा नाम भी जावेद है और बात भी उसी तरह की करने लगा हूँ जो उन्होंने की है। उन्होंने ज़रा जोश में, मैं थोड़ा सा कम जोश में कह रहा हूँ रिक्वेस्ट के अंदाज में, कि अगर आप फोरम देते हैं तो साथ शनाख्त भी दीजिए। अगर किसी को मौका देते हैं, शनाख्त का मतलब यह है कि आप बड़ा ढीला डाला नहीं लेते। अगर पाकिस्तान इंसाफ में हम लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे मामलात में आज खड़े और बच्चे या हमारे मशरान जो हैं नेशनल के साथ खड़े हुए, तो उनके साथ बड़ी मौदबाना ये रिक्वेस्ट है कि पहली बात है कि हज़ारों नोटिफिकेशन होते हैं, किसी ने नहीं हुआ कि इकट्ठा किया जाए, और जब आपको बुलाया जाता है तो फिर कोशिश करें कि आप लोग हमारे साथ खड़े हों, हमारे शाना बशाना खड़े हों, और हमें पता चले कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म पे हम दुरुस्त अंदाज में खड़े हैं। और मैं थैंक यू अदा करूँगा और आपको यकीन दिलाऊँगा, आप ज़रूर अपने मशरान को बताएं कि जो इंतखाब आपने किया है वो कोई शख्स नहीं है जिसका इंतखाब आपने एज ए वाइस चेयरमैन KPK यूथ मिनॉरिटी के तौर पे किया है। वो कोई एक अकेला शख्स नहीं, बल्कि वो इज्तिमा है ये इस कोहाट के लोगों का, कोहाट के कि वो ज़मीन से निकलने वाला बच्चा है और उस बच्चे ने कल को बढ़ना है और बहुत मुस्बत अंदाज में बढ़ते हुए आपकी इस काउंसिल के लिए एक सूदमंद इजाफा साबित होना है। और ना सिर्फ कोहाट लेवल पे बल्कि डेरा इस्माइल खान, टांक, बन्नू, लकी और उसके बाद करक और यहाँ से चरसदा और आगे जहाँ पे आप चले जाते हैं बन्नू और मर्दान और जो भी आपके जो ज़िले हैं 27 अजला हैं, उन सब में रीच आउट करता है ये शख्स जिसको आपने वाइस चेयरमैन बनाया, जिसका नाम शारून है। और ये बहुत हद तक आप इसको देखेंगे कि चेंजेस जो हैं वो आपके लिए यूथ जो मिनॉरिटी के है उनको वो खड़ा करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस जिसको जो देते हैं उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दें। ऐसे नहीं कि आप खानापुरी के लिए मिनॉरिटी को लेके चलते हैं। मिनॉरिटी आजकल दूसरी शक्ल में आपको इसलिए जरूरी है कि नोटिस भी ना दें। जब तक आप प्रॉपर हक नहीं देते हैं तो आपसे आगे होंगे हम हर मामले में, हर मुश्किल में, मगर जब तक हमें शनाख्त आप नहीं देते तो फिर हमसे तकाजा भी ना करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जितने लोग आए हैं मेरे मेहमान हैं। इसके बाद